everyone. Today we are going to discuss a new topic named sectors of the Indian economy. Sectors of the Indian economy. So, Indian economy is divided into different type of sectors. Indian economy is divided into different type of sectors. If we will divide Indian economy according to the activities, we will call them primary sector, tertiary sector, secondary sector. First we have to know that how many types of economic sectors are there. So sectors of the Indian economy according to activities. According to activities, we can divide them as primary, secondary, and third is tertiary. According to the activities of people, primary, secondary, tertiary. And according to the ownership, we can divide Indian economy into, according to the ownership, we can divide it into private sector, public sector, joint sector. So we can divide Indian economy into these types: private sector, public sector, joint sector. And according to the organization, whether they are organized or not organized, we can divide economy into organized sector or non-organized sector or unorganized sector. So according to the organization, we can divide Indian economy into organized sector and non-organized sector. So these three type of we will going to discuss. First we will discuss about sectors of the Indian economy according to the activities. Sectors of the Indian economy according to the activities. We will discuss it: primary, secondary and tertiary. Firstly, we will discuss the three sectors according to the activities of the people. According to the activities of the people, the three sectors are primary sector, secondary sector and tertiary sector. So how it is divided, ये कैसे divided है, पहले आप लोग ये समझें. तो हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है वो तीन तरह का होता है. एक एक्टिविटी ऐसा होता है जो डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड होता है, जो मतलब प्राइमरी होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, या फिर वैसा चीज़ जो डायरेक्ट मतलब नेचर से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है और उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है. एंड दैट इज़ base of all other sector. That is the primary sector and base of all other sector. So that is called primary sector. For example, see primary sector, things like agriculture and related work. जैसे एग्जाम्पल है कि एग्रीकल्चर क्या होता है, फील्ड में बस सिंपल सा उसमें एक बीज डाल दिया गया और जो भी फसल हो गया उसको काट लिया गया. सो दैट इज़ द प्राइमरी थिंग. एंड उस वर्क के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो फॉर एग्जांपल वीट आया. अब वीट को मॉडिफाई करेंगे और उसके लिए फैक्ट्री लगाएंगे या कोई और भी तरीका अपनाएंगे तो सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाएगा वो, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी सेक्टर.
तो प्राइमरी सेक्टर से जो भी प्रोडक्ट निकलता है उसका मॉडिफिकेशन जब किया जाता है तो उससे रिलेटेड वर्क को सेकेंडरी सेक्टर बुलाया जाता है। व्हेन वी मॉडिफाई द थिंग्स गेट्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, then that activity is called secondary activity, and all these activities comes under secondary sector. So secondary sector means industrial activities, industrial activity, all industrial activities comes under secondary sector. Why it is called secondary? Because it is secondary. After primary sector, the product of primary sector converts into secondary product by different means, by different industries. So that is totally, all these activities are called secondary sector, and it is industrial activities or industrial sector also. We can call it as industrial sector also. And primary sector we call agricultural sector also. But after all these two things, for example प्राइमरी सेक्टर से भी जो प्रोडक्ट आया वो सेकेंडरी में गया, सेकेंडरी तक पहुंचाने के लिए उसको कुछ सर्विसेज की ज़रूरत होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो सर्विस हो गया। या सेकेंडरी वाले को भी बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनको लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, बैंक से लोन लेते हैं वो लोग, इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, उनको अपने इंडस्ट्री, अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है। सो ऑल दीज थिंग्स विच कम्स अंडर सर्विसेज, these things are called tertiary activities, and all these activities are called tertiary sector. So third is tertiary sector. Tertiary sector means service. All the services which are necessary for primary sector and secondary sector is called tertiary sector. Services like transport, communication, teaching, banking, hotel, tourism. So all these things comes under tertiary sector. और ये टर्शियरी सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है दोनों को, प्राइमरी सेक्टर वाले को भी, जैसे अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में, या बैंक से, जैसे फार्मर लोग बैंक से लोन लेते हैं, फार्मर लोग को अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत, कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए वो कुरियर का यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑफिस का यूज़ करते हैं, बैंक्स की ज़रूरत पड़ती है लोन लेने में। तो सारी चीज़ों के लिए सर्विस सेक्टर की ज़रूरत है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर वाले को भी सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। टू टेक ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ देयर इज़ अ नीड ऑफ टर्शियरी सेक्टर। सो दीज थ्री इंडस्ट्रीज, Indian economy is divided into three sectors according to activities. The name are primary sector, secondary sector and tertiary sector. Now we will see the next thing about how which sector is producing more product, which sector is employing more people, कौन सा सेक्टर ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, जीडीपी में किसका शेयर ज़्यादा है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है. ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस नेक्स्ट. Discuss out of these three sectors, primary, secondary and tertiary, which sector is giving more employment, which sector is giving more output in the GDP. So we will compare all these three sectors. How we compare, हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, कौन सेक्टर ज़्यादा जीडीपी में शेयर दे रहा है. इसके लिए पहले हम लोग ये जानते हैं
कि कैसे फाइनल गुड्स या सर्विस का काउंटिंग होता है, कि कौन सा सेक्टर, क्योंकि एक सेक्टर तो बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत तरीक़ा का एक्टिविटी हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्ट भी है, सर्विस सेक्टर में बैंकिंग भी है, इंश्योरेंस भी है, कम्युनिकेशंस भी है। तो सबका आउटपुट क्या आ रहा है, कैसे कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो हम लोग कैसे काउंट करेंगे ये, या इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है कैसे काउंट करेंगे। इतना तरह का चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें आपको एग्रीकल्चरल गुड्स को भी प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे वीट रिलेटेड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से, जैसे बिस्कुट हो गया, जैम हो गया, जेली हो गया, और डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रो बेस्ड फूड्स इंडस्ट्री। इसके अलावा फर्नीचर है, इसके अलावा कितने तरह का इंडस्ट्रियल गुड्स है, पाइप्स है, सब कुछ है। तो कैसे इसका काउंटिंग होता होगा। तो ये सारे काउंट करने के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट का अपना एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मिनिस्ट्री फॉर इट, and it takes the help of different departments and ministries of all state governments and union territories. इंडिया के जितने स्टेट गवर्नमेंट में भी इसके लिए डिपार्टमेंट बने हुए हैं और यूनियन टेरिटरी में बने हुए हैं, सभी अपने अपने इलाका में काउंटिंग करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही चीज़ को हम लोग लेते हैं कि अगर हम लोग को देखना है कि कितना वीट का आउटपुट हो गया है या कितना, तो इसके लिए हम लोग फाइनल गुड्स को देखते हैं। सबसे पहले एक कंसेप्ट है फाइनल गुड्स। जब भी हम लोग जीडीपी का काउंटिंग करेंगे, जब भी हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी कंट्री का, जीडीपी अपने देश का निकालते हैं, तो पहले देखते हैं कि फाइनल गुड का प्राइस क्या है। जैसे कि अगर वीट किसान से खरीदा, फार्मर से, कोई इंडस्ट्री ने, बिस्कुट की कंपनी ने वीट फार्मर से लिया, तो उसको डायरेक्ट वो फार्मर से नहीं लेता, वो फ्लावर मिल से लेगा। तो अगर वीट 8 रुपया केजी है तो फ्लावर मिल उसको 10 रुपया पर केजी खरीद लिया। तो 8 रुपया पर केजी में वीट बिका, और यही वीट जो फ्लावर मिल में गया वो 10 रुपया पर केजी में गया। और फ्लावर मिल से ये वीट जब बिस्कुट बन गया और बिस्कुट के फैक्ट्री से बन के निकला, कस्टमर के पास गया, तो वो 60 रुपीज़ पर केजी गया। तो अब हम लोग जब भी जीडीपी में काउंट करेंगे, जब कंट्री के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट करेंगे, तो हम लोग इस फाइनल गुड्स का ही जो वैल्यू है उसको काउंट करेंगे। तो जो भी गुड्स बिस्कुट बन के तैयार हुआ वो फाइनल गुड कहलाता है। सो इन काउंटिंग द जीडीपी, जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, we count final goods of all the, we count final price या final cost of all goods and services produced in the country. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब डोमेस्टिक, अपने देश के अंदर जितने भी गुड्स और जितने भी सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं। चाहे डॉक्टर ने एक फीस लिया तो एक सर्विस हुआ, वो 600 रुपया उसका लिया तो एक सर्विस कहलाया। अगर एक साल के अंदर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर से अगर 500 करोड़ का इनकम आया और वो 500 करोड़ वो टोटल उसने मतलब टिकट बेचा, तो उसका फाइनल प्राइस है। तो सारी चीज़ों का फाइनल प्राइस, चाहे गुड्स और सर्विस का फाइनल प्राइस को काउंट करके जीडीपी निकाला जाता है। और ये किसी कंट्री का स्ट्रेंथ इसी से समझा जा सकता है। जीडीपी इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड द आउटपुट इन द इकोनॉमी, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी। तो जीडीपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो फाइनल गुड्स को नापना है और बीच के प्रोसेस में जो भी रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बिस्कुट के लिए फाइनल गुड है वो बिस्कुट जो 60 रुपये केजी में बिका, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया इसका वीट और फ्लावर। वीट और फ्लावर इंटरमीडिएट गुड है और फाइनल गुड है
बिस्कुट। तो जब भी जीडीपी में काउंट करेंगे बिस्कुट का, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जीडीपी में शेयर धीरे धीरे टर्शियरी सेक्टर का ज़्यादा होते जा रहा है। पहले प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा जीडीपी में शेयर था, फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ 100 सालों के बाद सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी में शेयर बढ़ गया, और आज के डेट में अगर हम लोग देखेंगे तो टर्शियरी सेक्टर का जीडीपी में सबसे ज़्यादा शेयर है, और सेकंड शेयर है सेकेंडरी सेक्टर का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और थर्ड शेयर है प्राइमरी। तो ये सब चेंज क्यों होता है, इसको हम लोग एक वी कैन अंडरस्टैंड इन ओनली वन पैराग्राफ, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। हिस्टोरिकल चेंज, जब भी कोई कंट्री अपने विकास के प्रारंभिक अवस्था में रहती है, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जनरली प्राइमरी सेक्टर यूज टू डोमिनेट। सबसे पहले इंसान प्राइमरी सेक्टर का ही काम करता है, फिर डेवलपमेंट जब होता है, जैसे एग्रीकल्चर अच्छा हो गया, ग्रोथ हो गया, तो आर्मी का ज़रूरत पड़ा प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत पड़ा, बैंकिंग का ज़रूरत पड़ा, तो धीरे धीरे अच्छा वो एग्रीकल्चर का ग्रोथ अच्छा हुआ तो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री लगता है, और इंडस्ट्री खुलता है तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ता है। तो पहला स्टेज में विकास के या डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, फिर सेकेंडरी मतलब विकास जब आगे बढ़ता है तो सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा होता है पावरफुल, और जब विकास सबसे ज़्यादा, व्हेन कंट्री इज मोस्ट डेवलप्ड, टर्शियरी सेक्टर यूज टू बी द मोस्ट dominant. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन ऑल डेवलप्ड कंट्री लाइक यूरोप, अमेरिका, टर्शियरी सेक्टर, मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज इन टर्शियरी सेक्टर। अमेरिका में तो ये हाल हो गया कि अब वो लोग धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर का सारा एक्टिविटी वो बाहर से ही इम्पोर्ट कर ले रहा है, क्योंकि प्रॉफिट उसको ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर से आता है। तो धीरे धीरे जैसे, तो इसी को होते हैं हिस्टोरिकल चेंज। हिस्टोरिकल चेंज मीन्स इन द इनिशियल years of the history, in the initial period of the history, primary sector used to dominate. After that, secondary sector starts dominate, industries starts opens up, and all these things takes place. And in the latter stage of development or highest stage of development, tertiary sector used to dominate. Service sector used to dominate. So now you should take some questions here. The first question of this chapter is explain the three sectors. Explain the three sectors of Indian economy according to the activities. Now question number 2 is the three sectors of Indian economy according to activity will be primary, secondary and tertiary. Question number 2 is how we compare different sectors of economy. How we compare, question number 2, how we compares the different sectors of economy. Question number 3, what do you understand by final good? Explain GDP. Question number 3, what do you understand by GDP? Explain final goods and final goods and intermediate goods. So question number 3. And question number 4,
explain historical changes in the explain historical changes in sectors. Explain historical changes in sectors. Why tertiary sector becomes most important in the developed country. So you have to write the answer of all these 4 questions, and now part 1 of this chapter is completed, and very soon I will send the part 2 of this chapter. Till then, bye. Thank you.